Welcome all, good morning. Today we start with our first flight lesson 5 and the other will be lesson 6 as you have part 1 of the 100 dresses and part 2. So first today we'll be doing with 100 dresses part 1 by E.B. Esther and along with this for few days once again grammar lectures also will be following. So as your tests are nearing, so we are trying to provide you at least see we have done active passive and we have done the basics of grammar, that is parts of speech and all, and after this particular chapter I would like to start with the compound complex simple. So please be attentive, follow the videos properly, keep on repeating so that it becomes easy for you, right? So let's start lesson 5 of first flight, the 100 dresses part 1. Now the 100 dresses, actually this part is not given in your textbook, but for you as an extra information, the 100 dresses is based on a true story as the author describes having witnessed a similar situation at her own elementary school, and she wrote her account, that is a small you would say in a form of a story of the young girl's mistreatment कि कैसे उसके स्कूल में एक छोटी सी लड़की को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी, and as Maddie wrote her letter to try to make amends for what had happened. So let's start. You will come to know who's Maddie and what were the amendments, that is some rectification made for what all had happened with their small girl in the school. Before you read, हर एक चैप्टर में ये सेक्शन तो होता ही है तुम्हारे and we have to read it. But before we start with the main story, which is actually a real story, let's see how do we judge the people around us? By their money, wealth or possession? Or is there something of more enduring value to look for in a person? Enduring value मतलब कोई बहुत अच्छी quality. तो how do you judge a person? People around you, I would say. Not only one person we judge. We judge so many people around us. We judge the students in the school, though they are not your friends. लेकिन friends के साथ गप्पे मारते हुए free time में gossip लड़ाते हो, and naturally gossip is what? When you don't talk about yourself, those who are present in that group, but you talk about the other people who are absent over there, and otherwise of those students or of those children or people whom you don't like, या फिर किसी के क्वालिटी के बारे में बात करते रहते हो, डिस्कशन करते हो, sheer waste of time I would say, but still it's human nature to judge the people. बट वी नेवर जज आवरसेल्फ. हर एक ह्यूमन बीइंग यही समझता है कि हम परफेक्ट हैं, 100% वी आर परफेक्ट इन ईच एंड एवरीथिंग, एंड वी नेवर क्रिटिसाइज आवर सेल्फ, बट वी शुड बी आवर फर्स्ट क्रिटिक. खुद को जज करो, खुद को क्रिटिसाइज करो कहाँ पे हम गलत जा रहे हैं. दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस. लेकिन किसी और को क्रिटिसाइज करने से क्या होगा? हमारा डाउनफॉल. किसी और को जज करने की राइट तो हमें है ही नहीं, बट यस दिस इज अ राइट दैट वी ह्यूमन बीइंग हैव टेकन, राइट? तो तुम किसी को किस बेसिस पे जज करोगे? वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट पर्सन. भैया अच्छे दिखने से, लग्जरियस कार में, बड़ी कार में घूमने से या अच्छे कपड़े पहनने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता. वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाएगा. 10-15 दिन, महीने, 2 महीने उसके साथ कांटेक्ट में रहो. एट प्रेजेंट सोशल डिस्टेंसिंग बेबीज. कांटेक्ट मतलब बी ट्राई टू नो दैट पर्सन. हम क्या करते हैं, एक दिन में जज कर लेते हैं किसी को देखने पे, या किसी के एक डायलॉग पे उसको जज करते हैं. किसी को पैसे से जज करते हैं, बहुत पैसे वाले, वाह क्या पर्सनैलिटी है, माय गॉड, अपने आप ही वो स्मार्ट दिखने लगते हैं हमें क्योंकि वो पैसे वाले हैं. किसी के पोजेशन से बहुत सारी चीज़ें उसके पास लग्जरियस, जज कर लिया अच्छा या बुरा. कई बार बहुत कुछ होने पे हम किसी को बुरा भी मान लेते हैं, पता नहीं गलत तरीके अपने के ही ये पैसे वाले बने होंगे. बट डियर वी डोंट हैव राइट टू जज एनी पर्सन. वी डोंट नो अबाउट द पर्सन, दैट पर्सन whom we are judging.
या कभी ऐसे भी होता है कि किसी की अच्छी क्वालिटी देख के हमने कभी किसी को जज किया, ये तो बहुत कम होता है, राइट? Like let me share one very nice some my experience. No, sorry for this, because as for my habit I keep on sharing my experiences. I can't share with you your experience with someone because I don't know. I can't share your feelings because they are your feelings. I don't know about the feelings or experiences about my family members because they are their emotions. जो उन्हें पता है, मुझ तक वो सिर्फ पहुंचाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, लेकिन उनके इमोशंस, उनके जो भी लाइक फीलिंग्स एंड ऑल आई कैन अंडरस्टैंड बट नॉट 100%, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. आई एम नॉट दे एंड दे आर नॉट मी. तो as I have already formed the habit of sharing my experiences in this many years of my profession, I would not call it a profession because I have never taken my teaching as a profession. It's just the thing that I love to be with my children, to teach. हाँ ठीक है, बाद में ये converted into a profession as the world sees around, but for me it is still me and my children communicating with each other. So one of the experience कि मुझे ये आदत थी, शायद अभी भी थोड़ी सी कहीं पे उसकी टेल रह गई है उस आदत की. जज द पीपल इंस्टेंटली, देखा और जज कर लिया 5 मिनट में, एंड ऑलवेज आई प्रूव टू बी रॉन्ग. ऑलवेज आई वुड से. हाँ, 1% कभी राइट हुई हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट हैपन कि देयर वाज वन ऑफ माई स्टूडेंट हु इज़ नाउ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एज सच यू ऑल आर माई क्लोज टू माई हार्ट, बट ये एक मेरी एक्स स्टूडेंट हु इज़ ऑलरेडी शी इज़ डूइंग अ मास्टर्स नाउ, सो नियरली मे बी 23, 24, मे बी 25. तो बहुत साल हो गए, बस वी स्टिल मीट ईच अदर. अभी मिलते नहीं तो फ़ोन पे बात कर लेते हैं, बट वी आर इन टच विथ ईच अदर. और ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 26, 27 के हो गए, बट वी मीट. अभी एक बच्चा आया था जर्मनी से और वो मुझे मिलने आया था, एंड आई वॉज सो वेरी थैंकफुल टू हिम कि बहुत साल के बाद भी जब वो आया यहाँ पे तो ही स्टिल रिमेंबर्स मी एंड ही केम स्पेशली to meet me at my residence, and we had a long chat for 3-4 hours. It was a really very good experience. और ये एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ के होते ही रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं. अगर बाहर से आते हैं US, UK या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से, तो फर्स्ट कम फर्स्ट दे मेक इट अ पॉइंट दैट दे कम एंड मीट मी. सो दिस इज अ बिग ब्लेसिंग आई वुड से दैट आई हैव गॉट in the form of my sweet children, loving children. So once again my experience will go back कि ये जो एक मेरी एक स्टूडेंट थी लड़की, एंड दिस गर्ल व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम, तब मैं एडमिशन करवाती थी, फॉर्म भरवाती थी अपने घर पे. तो वो लोग आए, वो लड़की आई अपने मम्मी के साथ मेरे घर पे, एंड देयर वर अदर्स फ्यू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो वर सिटिंग इन आवर लिविंग रूम. और ट्यूशन तो वही सत्यम मॉल में थे, बट इट वॉज नॉट ऑन दिस ऑन दिस लार्ज स्केल की तब मैथ साइंस भी नहीं था. मी अलोन आई वॉज कैरिंग ऑन विथ ओनली इंग्लिश एसएस, और शायद रोहित सर भी नहीं थे तब. तो बच्चे आते थे पेरेंट्स के साथ घर पे एडमिशन के लिए. क्लासेस वर कंडक्टेड एट सत्यम मॉल. अब ये लड़की जो आई तो her mother was sitting with me on that sofa. She was sitting near me. वो लड़की सामने के चेयर पे बैठी. We were talking and she was continuously chatting on her phone. तो तभी मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब होने लगा. That my God, देखो first judgment, no manners, ये मेरे दिमाग में आ गया. फिर भी मैं बोला चलो बहुत ध्यान नहीं देना है, बच्ची है, let it. She came for her 9th admission. आफ्टर दैट इट सो हैपन कि उसकी मम्मी से बात मैं कर रही थी, एंड मदर वॉज इंक्वायरिंग वेयर शी वॉज आस्किंग मी सम क्वेश्चंस. मैं जवाब दे रही थी. अचानक से वो लड़की खड़ी हो गई, फ़ोन उठा के, ना एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी, आई एम मूविंग आउट, आई जस्ट कम इन 5 minutes.
अर्जेंट कॉल है, आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट, कुछ नहीं। फ़ोन उठा के जो बार भागी, आई डोंट नो क्या सीक्रेट बात चल रही थी। शी वेंट आउट ऑफ द रूम, शी डिडंट कम बैक देन। उसकी मम्मी सब फॉर्म फिलअप करके चली गई। एंड नेक्स्ट डे, दैट डे व्हेन दे ऑल वेंट अवे, आई टोल्ड रोहित सर कि ये लड़की को तो मैं लेने ही नहीं वाली हूँ, जस्ट सी, मेक इट अ पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू टेक हर। Rohit sir said, now you know about the tuition, you are handling everything, so you look at it what you want to do. Because that time Rohit sir was not a part of institute. And Kushan sir तो थे ही नहीं, तो now it was a difficult situation what to do. बट मेरे दिमाग में जो कई बार कई चीज़ें सेट हो जाती है तो वो निकालना मुश्किल हो जाता है. एंड आई एम एक्चुअली दो अ वेरी लविंग पर्सन, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी एडमेंट. एडमेंट मतलब ज़िद्दी, राइट? जो चाहिए वो चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसको तो मैं रहने ही नहीं देती, फिर वो चीज़ हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो, राइट? नाउ इट सो हैपन कि दैट गर्ल, चलो फिर मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोला जाने दो, लेट्स सी. लेकिन दिमाग में वो हिट करता रहा कि ये लड़की जब मेरे सामने आएगी, हाउ विल आई बी एबल टू टीच हर, बिकॉज आई नॉट बी कंफर्टेबल विद दिस गर्ल हु इज हैविंग नो मैनर्स, who doesn't know how to. I don't want respect in the form of teaching, touching the feet and all, but my students studying with me since 8th standard over here या 9 से, उन सबको पता है my form of teaching in class. या जब वो मुझे मिलते हैं तो क्लास में एंट्री लेने के पहले कई बच्चे आके एकदम से गले लग जाते हैं. So this is how is my way of moving ahead at the tuition at the institute. So कई नए बच्चों को या पेरेंट्स को बहुत ही ये कई बार बिगनिंग में वियर्ड भी लग रहा है कि मैम कैसे बच्चों को गले लग रही है, बट दैट इज़ अ वे. और फिर धीरे 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 वही बच्चे जिनको वियर्ड लग रहा है वो भी इस फ्लो में आ जाते हैं, बिकॉज दे देन स्टार्ट नोइंग मी एंड आई नो माई चाइल्ड हु इज़ ऑलवेज द बेस्ट. तो फिर वो लड़की, बहुत पहले की बात है, नॉट नाउ, मेक इट अ पॉइंट, दैट गर्ल इज सो हैपन कि धीरे 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 फिर वो अपने ग्रुप का भी साथ में एडमिशन उसने करवा लिया था. तो लेटर ऑन ठीक है, 2-4 महीने हुए, 6 महीने हुए, फिर धीरे 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 वो बहुत प्यारी लगने लगी. फिर वो 10th में भी आई. देन दैट टाइम आफ्टर बाय मीन टाइम कुशान सर केम हियर. तो हम लोगों ने 11th-12th भी कॉमर्स स्टार्ट कर लिया था. तो तब तक वो लड़की 11th में आई. मीन्स जस्ट सी, 9th आई हैड डिसाइडेड कि लड़की को तो लेना ही नहीं है. फिर 2-3, दैट वाज माय फर्स्ट रॉन्ग जजमेंट. फिर 2-3 महीने तक वही जजमेंट, गलत 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 गलत, स्टार्टिंग कमिंग क्लोजर 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 टू दैट गर्ल, started loving her so much with like all other children, and we became so close to each other, our families became so close to each other कि फिर तो वो घर पे आने जाने लगी. We used to go to a place and like 11-12 भी हम यहीं पे उसने किया इंस्टीट्यूट में कॉमर्स एंड वॉट एवर. फिर तो लाइक यू नो एवरी टाइम 1-2 महीने होते आ जाती क्लास पे, टपक पड़ती चालू लेक्चर में अंदर, मैम 1 मिनट गले लग के फिर वापस बाहर भाग जाती. तो दिस इज़ हाउ आई सेड सॉरी टू दैट गर्ल. और मैंने उसके साथ भी शेयर किया था, और अब तो हंसी मजाक में हर बार जब भी मिलते हैं ये पॉइंट तो मैं रेज करती हूँ दैट माई गॉड, जस्ट सी कैसे मैंने तुम्हें रॉन्ग जज किया था और मैंने कैसे फिक्स किया था. ऐसे एक बच्चे के साथ भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो उसी की बैच का था, बट ही केम बिफोर हर इन 8th स्टैंडर्ड एंड दैट टाइम यूज्ड टू गो फॉर मैथ साइंस समवेयर एल्स. एंड दिस चाइल्ड, लड़का, तो वो अब ऑस्ट्रेलिया में है एंड वेरी क्यूट. उसकी तो फ़ोटो भी उसने मुझे दे के रखी है, एक पासपोर्ट साइज़, कि मैम आपके वॉलेट में ही रखना हमेशा. मैं बोला ओके, एंड स्टिल विथ मी वेर एवर आई कैरी माई पर्स, इट्स ऑलवेज देयर. ही कम्स अलॉन्ग विथ मी एवरीवेयर, ही फॉलोज मी एवरीवेयर. तो ये लड़का जब 8th में आया तो एज यू नो आई डोंट गिव मच ऑफ होमवर्क, राइट? सबको पता है आई डोंट बैंग यू विद द होमवर्क. आई जस्ट टेल यू कि इतना करना है रोज़ का रोज़. एक चैप्टर खत्म हुआ, नोट्स में से क्वेश्चन आंसर लर्न करके लिख लो बिना देखे होमवर्क बुक में. दैट इज़ माई पैटर्न. और टेस्ट में पता चली जाएगा कि तुम पढ़ रहे थे या नहीं इतने टाइम. बट आई डोंट गिव यू लोड्स ऑफ होमवर्क. हाँ, ग्रामर होता है तब दे देती हूँ. तब ये लड़के ने
एक आध महीना आया होगा, 1-1.5 महीना, एंड ही स्टार्टेड इरिटेटिंग मी इन द क्लास. बदमाशी करना, ऊंची आवाज़ में चिल्लाना, और फिर एक दिन मैंने डांटा और होमवर्क नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो तो करके भाग गया क्लास में से. डायरेक्टली रैन अवे फ्रॉम द क्लास बाय शोइंग हिज टंग टू मी एंड आई वाज शॉक्ड. आई सेड व्हाट अ चाइल्ड. फिक्स हो गया, फिर से वही नहीं लेना. फिर जब वो घर ऐसे करके भाग गया, नेचुरली उसको तो अब आना ही नहीं था, क्योंकि उसको लगा अब तो मैम डांटेगी. ऐसे मुंह में से टंग निकाल के मुझे दिखा के चला गया था. एंड टुडे आई लाफ लाइक अ लॉट, लाइक कि हाउ क्यूट दिस चिल्ड्रन आर, द स्मॉल चिल्ड्रन 8th में 9th में, जिनको 10th ऑल्सो क्यूट. डोंट वरी, बिकॉज यू आर स्टिल वेरी स्मॉल. यू थिंक यू हैव ग्रोन अप बट यू आर नॉट ग्रोन अप मच. हाँ, कहीं पे ग्रोन अप हो बट हर जगह पे नहीं. अब ये लड़का ने कहा मैं तो ट्यूशन जाऊंगा नहीं. अब उसके मैथ साइंस के जो भी सर टीचर थे उन्होंने कहा भैया क्यों नहीं जाना है, कामिनी मैम होमवर्क बहुत देती है. आई सेड सॉरी. नेचुरली ये लड़का थोड़ी ना बोलेगा कि मैं टंग दिखा के मैम को वापस भाग गया था, और उसने तो बहाना बना लिया मैं नहीं जाऊंगा अब वहाँ पे. फिर उसके पापा खींच के ले आए 2-3 दिन के बाद कि आप ही को पढ़ाना है और 10 तक ही यहीं पे बच्चा रुकेगा. देखता हूँ कैसे भागता है. विल यू बिलीव, अगेन उसी ग्रुप का लड़का, वंस अगेन ग्रेट बॉन्डिंग विथ मी. उसके बाद वो भी 12th तक हमारे यहाँ रहा. तो दिस आर सम ऑफ दी माई रॉन्ग जजमेंट वाले एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव शेयर्ड. वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन हर बार रॉन्ग जजमेंट वाले नहीं है, सही जजमेंट वाले भी थे. एंड बट देन इट विल टेक 2-3 hours एक चैप्टर कंप्लीट करने में. एंड देर आर स्टूडेंट्स हु वांट मी टू कंप्लीट 5, 6, 7 बाय 29th. बट लेट मी सी कि चैप्टर्स भी काफ़ी लंबे हैं, तो देखते हैं कितना कंप्लीट होता है. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. और साथ में ग्रामर भी तुम्हें देना है साथ साथ, दो इज़ नॉट अ कंपल्जन बट आई फील दैट कर लेते हैं साथ साथ ग्रामर. कहीं पे 1 मार्क का भी तुम्हारी 10 मार्क की टेस्ट, 20 मार्क की टेस्ट स्कूल में है, उसमें टीचर्स इतने सारे चैप्टर्स डाल रहे हैं और लिख दिया है वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फॉर MCQ. इट्स ओनली MCQ टेस्ट, बट स्टिल चिल्ड्रन आर इन प्रेशर. तो let's start with the story. Now this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmate. कैसे उस लड़की को उसके क्लासमेट ने, गरीब लड़की थी, उसके क्लास के बच्चों ने उसे कैसे जज किया. And her name was Wanda Petronsky. Is a young Polish girl that's from Poland who goes to school with other American children in an American town. These other children say Wanda is different. अब क्यों ये लोग इसे अलग तरीके से देख रहे हैं, क्यों जज कर रहे हैं? कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? रीड द इंफॉर्मेशन बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट. यू विल कम टू नो एवरीथिंग, यू विल गेट ओवर देयर. बट लेट्स सी, आई हैव प्रोवाइडेड यू सम ऑफ इट ओवर हियर. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन US. द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट मतलब कि अराइव्ड इन अमेरिका, मतलब अमेरिका में किसी और कंट्री से लोगों का आना, तो वो हुए इमिग्रेंट फॉर अमेरिकन्स. तो ये इमिग्रेंट कौन थे जो अमेरिका आए? दैट इज पॉलिश, राइट. तो ये फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. एंड बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ, मतलब बहुत सारे पॉलिश इमिग्रेशन कब आए? दे अकर्ड इन द अर्ली 20th century, मतलब 20th century मतलब 1900 में. तो आए, स्टार्ट किया उन्होंने अमेरिका में आना 1600 में, मतलब 17th century. लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आई 20th century बिगनिंग में, when more than 1 million Poles migrated to US. Poles मतलब वही ये लोग. The Polish state did not exist at that time. अब तब एक्चुअली ये स्टेट था नहीं. And the immigrants were thus identified according to the country of origin rather than to ethnicity. मतलब स्टेट के हिसाब से उनको आइडेंटिफाई नहीं करते थे. वो कहाँ के ओरिजिन है, कौन सी कंट्री में बॉर्न हुए हैं, वैसे उनको आइडेंटिफाई करते. दे वर आइडेंटिफाइड लाइक एज रशियन, जर्मन, ऑस्ट्रियन. तो हम देखते हैं यहाँ पे पॉलिश स्टेट क्या है. इट्स अ कंट्री ऑफ सेंट्रल यूरोप. एट द एंड ऑफ 18th century इट वॉज डिवाइडेड. Once again in 1918 it got independence.
The full official name of this Polish state is that is Rzeczpospolita Polska, which translates to, इसका मतलब हुआ Commonwealth of Poland, right? One of the most notable Polish American communities in Chicago and its suburban area. Suburb मतलब outside the city area, जैसे हम कहते हैं भोपाल, राइट? जैसे भोपाल को तो आजकल सिटी में अहमदाबाद में एंट्री हो गई है, देन यू कैन टेक द रिंग रोड, राइट? तो वहाँ की सारी जो रेसिडेंशियल रीजन है उसको हम कहेंगे सबर्ब. सो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे ये इमिग्रेंट्स रह रहे. नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो. वॉर्सो पैक्ट हुआ था, विच यू विल लर्न लेटर ऑन इन एसएस. कैपिटल ऑफ पोलैंड, वॉर्सो जगह है जो पोलैंड की कैपिटल है. पॉलिश अमेरिकन वर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड इन यूएस. अब क्योंकि ये लोग अमेरिका के इमिग्रेंट्स थे, बाहर से आए थे, तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है यूएस में. एज वर द आयरिश, इटालियन एंड जूइश. जैसे यूएस में जूइश को डिस्क्रिमिनेट करते, पार्शियलिटी होती इटालियंस के साथ, आयरिश के साथ, वैसे ये पॉलिश के साथ. अकॉर्डिंग टू यूएस 2000 सेंसस, 667,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 years एंड मोर देन 5 years रिपोर्टेड पॉलिश. अब अमेरिका में 2000 में जब काउंटिंग हुई, सेंसस कहते हैं उसको, पॉपुलेशन काउंटिंग, तो इतने अमेरिकन, अबाउट 5 years या उससे ज़्यादा के बच्चे, दे वर पॉलिश अमेरिकन एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश. मतलब इंग्लिश के अलावा जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें 100 में से 1.4% लोग पॉलिश बोलते थे, और 0.25% of the US population, right? So this was just an introductory, some informatory part I would say, not introduction, information provided. तो ज़्यादा तो तुम नेट पे भी सर्च कर सकते हो उसके बारे में, काफ़ी कुछ दिया हुआ है about this Polish state. Let's start with the story. And as I told you, it's a real one. Today, Monday, Wanda was not in a seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all this fun, जिन्होंने मजाक स्टार्ट किया था, इन दो लड़कियों ने, नोटिस हर एब्सेंस. नोटिस मतलब पूरा रीड करो तो देखो. वेंडा वॉज नॉट इन अ सीट, वो अपने बेंच पे थी नहीं क्लासरूम में, लेकिन दो लड़कियों ने जिन्होंने ये फन स्टार्ट किया था, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया उस दिन मंडे कि भाई वेंडा नहीं आ रही थी. यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 30. अब क्लासरूम 13 में उसकी फिक्स सीट पे वो बैठती थी. उसकी सीट फिक्स नहीं थी, उसने खुद वो पिकअप की थी वो सीट, और वो लास्ट सीट के नेक्स्ट में थी, लास्ट रो में. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज मतलब जो पढ़ाई नहीं करते, बदमाशी करते, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, ऐसे बच्चे. सो शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स सैट. मतलब हर बार लास्ट सीट पे कॉर्नर में बदमाश बच्चे बैठते, ना पढ़ने वाले बच्चे बैठते, तो ये लड़की भी ऐसे एक कॉर्नर में बैठ गई. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोर स्कफिंग ऑफ द फीट. ऐसा कॉर्नर ये था रूम का, क्लासरूम का, जहाँ पे नॉटी बॉयज, नो पढ़ाई करने वाले बॉयज, स्कफलिंग ऑफ द फीट मतलब जो पैर से हमेशा आवाज़ करते थे, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर, ऊंची आवाज़ में हमेशा हंसना, मेकिंग फन ऑफ समथिंग और द अदर, या ऐसी डायलॉग बाजी करना, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. और ऐसी जगह से आते कि अपने जूतों में डर्ट लेके आते और फिर पैर पछाड़ के बदमाशी करते, तो वो कॉर्नर ऑफ द रूम हमेशा डर्टी रहता, राइट, विद दैट मड एंड डर्ट. वेंडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी. अब वेंडा भी ऐसे एक कॉर्नर में बैठी थी, दैट लास्ट पार्ट ऑफ द रूम, लेकिन इसलिए नहीं कि वो डर्टी थी या वो बदमाश थी दूसरे वो लड़कों की तरह. ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली, मतलब हार्डली शी सेड एनीथिंग एट ऑल. चुप थी, एकदम क्वाइट. नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. कभी वो ऊंची आवाज में हंसी हो वैसे किसी ने सुना नहीं था आज तक. समटाइम्स शी ट्विस्टेड अ माउथ इनटू अ क्रूकेड सॉर्ट ऑफ स्माइल. हल्का सा मुंह ऐसे टेढ़ा करती, एज इफ शी वॉज गिविंग अ स्मॉल स्माइल. दैट वॉज ऑल, उससे ज्यादा कुछ नहीं. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी को नहीं पता था क्यों वो ऐसे कॉर्नर में बैठती थी,
क्योंकि वो कॉर्नर तो माना जाता था ऐसा दूसरा कॉर्नर उस रूम का जहाँ पे बदमाश बैठते थे, नॉटी बॉयज, ना पढ़ने वाले बच्चे। तो किसी को नहीं पता था एग्जैक्टली वाई वेंडा पिक्ड अप दैट सीट अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिनसाइड। वो ऐसी जगह थी जहाँ पे आते आते रास्ते में मड एंड ऑल यूज टू गेट स्टक टू द फीट एंड ऑल टू द शूज एंड अ फीट वर यूजुअली केक्ड, मतलब स्टक विद ड्राई मड। शायद वो इसलिए बैठती थी, दूसरे बच्चों ने ये माना था कि मे बी बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम दिस रीजन जहाँ पे उसके शूज़ में या चप्पल्स में मड लगा था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट हर। वन शी वेंट एंड सैट इन दैट कॉर्नर ऑफ हर रूम ऑन हर सीट। फिर लोग उसको, बच्चे भूल जाते, उसके बारे में सोचते ही नहीं। द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड द स्कूल। अब सोचते थे कब वेंडा के बारे में? जब वो स्कूल टाइम के बाद, स्कूल के बाहर या क्लासरूम के बाहर, और ये टाइम था नून टाइम, when they were coming back to school or in the morning early before school began। देखो, या तो स्कूल आने के पहले का टाइम स्कूल के बाहर, या स्कूल से जाने का टाइम और स्कूल के बाहर। मतलब स्कूल में, क्लासरूम में वो कभी वेंडा की मजाक नहीं उड़ाते। इट वॉज एवरी टाइम आउटसाइड when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard। अब रूम से बाहर आते, क्लासरूम से, और यार्ड में खड़े रहते, स्कूल यार्ड में, तब 2-3 बच्चे इकट्ठा होके हंसी मजाक करते। देन समटाइम दे वेटेड फॉर दिस गर्ल टू हैव फन विथ हर। कई बार वो इस लड़की के लिए वेट करते और उसकी मजाक उड़ाते। नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब मंडे तो वो आई नहीं, किसी का ध्यान गया नहीं। नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल ईदर। अगेन वो नहीं आई। अगेन नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, राइट? ये चलता रहा। लेट्स सी टिल हाउ मेनी डेज। नाउ ऑन वेडनेसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there। अब पैगी और मैडी अच्छे खासे घर की होगी शायद। That will come to know as we move ahead in the chapter, in the story। ये हमेशा दूसरे बच्चों के साथ फ्रंट सीट पे बैठते थे, जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, जिनके शूज़ में कभी मड नहीं लगा रहता। थर्ड डे, वेडनेसडे, रिमेंबर मंडे शी डिडंट कम, ट्यूसडे अगेन एब्सेंट। दोनों दिन किसी ने नोटिस नहीं किया उसकी एब्सेंस। थर्ड डे वेडनेसडे अब नोटिस किया। तो नाउ दे डिड नोटिस दैट वेंडा वॉज एब्सेंट। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। शी वॉज प्रिटी, इसलिए पॉपुलर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, इसलिए वो शी वॉज फेमस। हर हेयर वॉज कर्ली, तो शी लुक मोर ब्यूटीफुल। मैडी वॉर अ क्लोजेस्ट फ्रेंड, अब उसकी बेस्ट फ्रेंड मैडी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा's एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब इन दोनों ने उसकी एब्सेंस क्यों नोटिस की? क्योंकि वेडनेसडे दोनों लड़कियां, दोनों फ्रेंड्स पैगी और मैडी लेट हुए स्कूल के लिए। और क्यों लेट हुए? क्योंकि वेंडा की मजाक उड़ाने के लिए वो लोग उसकी बाहर कहीं पे वेट कर रहे थे एक जगह पे, लेकिन वेंडा आई ही नहीं और ये लोग लेट हो गए स्कूल के लिए। इसीलिए उनको पता चला, उन्होंने नोटिस किया कि ये लड़की एब्सेंट है। नाउ दे हैड वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड फॉर दिस गर्ल टू हैव सम फन विथ हर। फन विथ हर मतलब उसके साथ खेलना करना नहीं, उसकी मजाक उड़ाना। बट शी डिडंट कम। दे ऑफन वेटेड फॉर हर टू हैव फन विथ हर। ऐसे कई बार हुआ था कि उसकी मजाक उड़ाने के लिए वो लोग बाहर खड़े रहते, वो आती, ये लड़कियां उसकी मजाक करते और फिर सब स्कूल चले जाते। Now Vanda, most of the children in room 13 didn't have names like that। अब यूजुअली वेंडा जैसा नाम बहुतों का नहीं था। दे हैड नेम ईजी टू से, सबके नाम ईजी थे। लाइक जैसे हम नहीं बोलते कि टॉमी एंड रिकी, रॉकी, राम, श्याम, शाहरुख, आमिर। तो हम तो ऐसे नाम नहीं रखते, शाहरुख, आमिर। बट फिर भी जैसे ये नेम कॉमन है, वैसे उनमें जो नाम हमारे जैसे राम, श्याम, हेली एंड व्हाट नॉट, हीना, मीना, टीना, रीना एंड राज एंड रुशिक एंड रोनी, ना ऑल दिस नेम्स, प्रियंका, प्रियाशा, प्रियांशी,
प्री वाले बहुत सारे कंफ्यूजिंग, और एक साथ कई बार तो एक ही नाम के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास में अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, तो वैसे उनके भी नाम इजी नेम्स, थॉमस, स्मिथ, एलन, लेकिन वेंडा जैसा कंफ्यूजिंग नाम नहीं था किसी का. यस, देयर वाज वन बॉय नेम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे लाइक वेंडा पेट्रॉन्स्की. उनको ज़्यादा फनी नाम इस लड़की का लगता था, लेकिन विली बाउंस का ज़्यादा फन लगता था, लेकिन ज़्यादा नहीं. Now Vanda didn't have any friends. She came to school alone, went home alone. She always wore a very light color. Faded मतलब जिसका कलर फेड हो गया हो, और डार्क ब्लू का लाइट ब्लू हो गया पहनते पहनते धोने पे, राइट. सो दिस गर्ल केम टू स्कूल विद अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, मतलब ज़्यादा ठीक फिट नहीं हो रहा था, जैसे बड़ा बड़ा था शायद. It was but clean, but it looked as though it had never been ironed properly. Clean था, लेकिन कभी ironing नहीं की थी. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. खुद के उसने कभी फ्रेंड्स नहीं बनाए, लेकिन काफ़ी लड़कियां उसके पास आके बात करती. अब समझ गए क्यों आती उसके पास? मजाक उड़ाने. Most of the time. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. Worn मतलब ठीक से रास्ता नहीं बना था, उबड़ खाबड़ ऐसे ही ग्राउंड था, हार्ड ग्राउंड, और वहाँ पे जैसे नहीं रास्ते पे या ग्राउंड में. आई यूज्ड टू लव दिस प्लेइंग, एंड इवन टुडे मैनी चिल्ड्रन आई नो दे प्ले दिस हॉपस्कॉच, और आई डोंट नो क्या कहते हो तुम अपनी भाषा में, बट इन इंग्लिश इज कॉल्ड हॉपस्कॉच, राइट. तो बहुत सारी लड़कियाँ स्कूल के ग्राउंड में ही खेलती, और वेंडा खड़ी रह जाती है देखने, लेकिन वो कभी खेलती नहीं. शी वॉज ऑलवेज अलोन. वेंडा, Peggy one day would say in a most courteous, that is in a very good manner, respectful manner, as though she were talking to Miss Mason. जैसे वो मिस मेसन के साथ बात कर रही हो, वैसे उसने बहुत रिस्पेक्टफुली, किसी टीचर से जैसे बात कर रही हो, वैसे उसने बहुत रिस्पेक्टफुली वेंडा के पास गई, और पैगी ने कहा वेंडा. अगेन शी वुड से वेंडा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज. नज मतलब ऐसे, मतलब देखो अब मैं कैसे उसकी मजाक उड़ाती हूँ. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. क्लोजेट मतलब वार्डरोब. अब ये लड़कियाँ उसकी, एक लड़की है पैगी, अपनी दूसरी फ्रेंड्स जो उसको हमेशा उसके साथ रहती मजाक उड़ाने में, तो ये पैगी ने ऐसे एल्बो से नच किया उसे. नच मतलब टू प्रॉड, कि ऐसे सी अब देखो मैं क्या करती हूँ. और वेंडा बेचारी शांत लड़की उसके पास जाके क्या पूछती, चल 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 वेंडा बता तो, तुमने क्या मुझे एक दिन बोला था कि तुम्हारे वार्डरोब में कितने ड्रेस हैंग हो रहे हैं. एंड 100, वेंडा वुड से, कि मेरे वार्डरोब में 100 ड्रेसेस हैं. 100, एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, मतलब शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, सरप्राइज. एक ही पुराने ड्रेस में फेडेड क्लोज और ढीला ऐसे हैंग हो रहा है स्कूल ड्रेस, ऐसे कपड़े में रोज एक लड़की का आना जो कह रही है कि मेरे वार्डरोब में 100 ड्रेस है, तो कैसे ये लोग बिलीव करते. एंड द लिटिल वंस वो स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी लड़कियां खेल रही थी हॉपस्कॉच, वो पास में आके सुनने बैठ जाती कि भाई 100 ड्रेसेस ऐसी के पास, ही 100 एक साथ, ऑल लाइंड अप इन द वार्डरोब, सेड वेंडा. तो सब तो पहले तो सरप्राइज थे, तो वेंडा ने धीरे से कहा हाँ, ऑल एक साथ. देन अ थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर चुप हो गई. व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क आई बेट, सेड पैगी. ये ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, एंड डोंट माइंड, कोई इस बाजू तुम्हें दिखाई देगा, इट्स ओके. इज समवन क्लीनिंग द बालकनी, सो you pay attention over here. What are they like? All silk? I bet. अब पैगी ने उसकी मजाक उड़ाई मस्त एकदम कि भैया सब सिल्क के हैं. I think so. ये all silk, all colors. पैगी ने वापिस शांति से जवाब दिया, yes, सारे 100 ड्रेस मेरे डिफरेंट कलर्स के हैं और सारे सिल्क के हैं. And velvet too? Yes, velvet too. And 100 dresses.
वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली. स्टॉलिडली मतलब नॉट शोइंग एनी फीलिंग. बिना कोई इमोशंस के, बिना कोई एक्सप्रेशन के उसने कह दिया हाँ मेरे पास वेलवेट के ड्रेस भी है, क्योंकि पैगी मजाक उड़ा रही थी कि वाह तेरे पास तो 100 ड्रेस, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, सारे सिल्क के, मतलब वेलवेट के तो होंगे ही. और उसने शांति से कहा हाँ सारे एक साथ लगे हुए हैं मेरे वार्डरोब में, उसमें वेलवेट के भी ड्रेस है. देन दे वुड लेट हर गो. मजाक उड़ाने के बाद फिर वो लोग उसे जाने देते. एंड देन बिफोर शी वुड हैव गॉन वेरी फार, दे कुड नॉट हेल्प बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर. श्रीक्स एंड पीस ऑफ लाफ्टर मतलब दैट इज जोर से हंसना. एंड sorry for the interference. Now 100 dresses. Obviously, that is clearly the only dress Venda had was the blue one she wore every day. Clearly, ये तो सब शॉक थे. 100 ड्रेस, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा था वेंडा तो रोज सेम ड्रेस पहन के आ रही थी. So why did she always say a lie? क्यों स्टोरी बना रही थी कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं और वो भी सिल्क के, तो पहन के तो आती नहीं. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? 60 pairs all lined up properly in my wardrobe. अब ये बेचारी लड़की कहती हाँ शूज भी हैं 60 pairs. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike. अब सारे लोग एकदम ऊंची आवाज में कहते लेकिन थोड़ा बहुत पोलाइटली, लेकिन इसमें भी मजाक थी. और क्या पूछते? ओ 60 pairs all same. Oh no, said Venda quietly. Every pair of my shoes are different. Every pair is different. All colors, all lined up. Peggy who had thought of this game. अब पैगी ने मजाक उड़ाने की एक सोचा था, प्लान उसका था कि चलो इसकी मजाक उड़ाई जाए. एंड मैडी इनसेपरेबल फ्रेंड. और पैगी को हर बार फॉलो कौन करता? उसकी बेस्ट फ्रेंड मैडी. वो ऑलवेज द लास्ट टू लीव. सब मजाक करते और चले जाते. लास्ट में कौन जाता मजाक उड़ाने के बाद? पैगी एंड मैडी. फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. फिर वो बेचारी चली जाती स्ट्रीट की तरफ. आईज डल, दुखी, माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन अ फनी वे शी हैड. हिचिंग मतलब ऐसे करना, राइट? सो हिचिंग हर वे, her shoulder every now and then. And then you would say that this girl, the girl says they were laughing at her. Then they would, she would hitch her shoulder and in a funny way, as I told you this way, finishing the walk to school alone. जब स्कूल में एंट्री लेने के पहले रास्ते पे उसकी मजाक उड़ाई जाती तो क्या होता? स्कूल में एंट्री लेती सैड मुंह नीचे देखते हुए, कुछ नहीं बोलना. स्कूल से बाहर भी वही होता था उसके साथ, बेचारे के साथ हर बार ना. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. पैगी वैसे क्रूअल नहीं थी, लेकिन बच्चों को आदत होती है. सो दे आर कॉल्ड चिल्ड्रन, राइट? बड़े भी ये काम कई बार कर लेते हैं, आयरनिकली टॉन्टिंगली बात करना दूसरों से. तो ये तो बच्चे हैं. तो दिल की तो अच्छी थी बेचारी पैगी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. बुलीज मतलब स्कूल के कई ऐसे बच्चे होते हैं, एक ग्रुप बनता है जो हर बार दूसरों को मेंटली परेशान करते. मारते नहीं, लेकिन उनकी मजाक उड़ाना, हंसना. उनको वो ग्रुप इतना खुद को स्ट्रॉन्ग बताता कि हम स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इस स्कूल के, हम जो कहेंगे वही तुम लोगों को करना है. तो बच्चे डरते उनसे, और वो जो कहते ये सारे बच्चे करते. तो पैगी इतनी स्मार्ट लड़की थी और इतनी अच्छी थी कि अगर ये बुलीज दूसरे बच्चों की मजाक उड़ाते या परेशान करते तो वो आके उनको प्रोटेक्ट करती. तो वैसे दिल की अच्छी थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और कभी कोई किसी एनिमल को मारता या मिसट्रीट करता तो वो घंटों तक पैगी रोती रहती. इफ एनीबडी हैज सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा? और कई बार कोई आके उसको ये भी समझाता कि तू जिस तरह से उसे ट्रीट कर रही है वो बहुत ही इट्स नॉट गुड.
यू आर वेरी बैड टूवर्ड्स वेंडा, इट्स अ क्रूअल वे ऑफ ट्रीटिंग हर। तब उसको सरप्राइजिंग लगता, क्रूअल? मैं क्रूअल नहीं हूँ। वो लड़की झूठ क्यों बोल रही है कि उसके पास 100 ड्रेस और सारे सिल्क के और वेलवेटी? इसलिए मैं बार बार उसको जाके पूछ रही हूँ, उसके मुंह से बुलवाना है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। आई एम नॉट क्रूअल। Peggy would be surprised. Cruel? What did the girl say? She had 100 dresses? Anybody could tell. कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है. That it was a lie. And why did she want to lie? She wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? और उसका नाम भी तो देखो. Anyway, they never made her cry. फिर भी कभी भी पैगी ने उसे रुलाया नहीं, लेकिन वो इमोशनली हर्ट होती थी। ये लड़की बहुत ही लो फील करती थी हर बार सबके सामने। स्कूल में अगर तुम्हारी कोई रोज़ मजाक उड़ाए या स्कूल के बाहर तुम्हें एक डर लगा रहता कि अभी ये लोग आएंगे और मुझे इस रास्ते पे पकड़ेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे, तो जस्ट सी हाउ व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू वुड बिकम, राइट? यही इसके साथ होता था वेंडा के साथ। अब पैगी बहुत ही जिसके पास बहुत सारे कपड़े थे। अब उसकी फ्रेंड मैडी, this business of asking Venda every time how many dresses, how many hats, how many shoes and how many this and that was bothering her. अब मैडी परेशान रहने लगी थी। क्यों? Let's see. ये सारे क्वेश्चन पैगी पूछती थी वेंडा को। मैडी उसकी साथ साथ हमेशा थी, पैगी के साथ, उसको फॉलो करती, उसकी बेस्ट फ्रेंड। अब बहुत दिन से मैडी थोड़ी शांत रहने लगी थी। उसको कुछ खटक रहा था कि हर बार वेंडा को ये जो पूछना बाय पैगी हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हैट्स एंड ऑल, तो खुद वो परेशान रहने लगी थी मैडी हरसेल्फ वाज पुअर। उसे डर लगा रहता कि वन फाइन डे अगर पैगी ने उसकी भी मजाक उड़ाना शुरू किया तो देखो, आर यू गेटिंग इट? किसी की मजाक उड़ाना या जो किसी की मजाक कर रहा है उसको सपोर्ट करना इज रॉन्ग। हमारा भी टर्न आ सकता है कभी। तो अब मैडी दुखी रहने लगी, परेशान रहने लगी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ। हैंड मी डाउन क्लोथ मतलब किसी के दिए गए कपड़े जो उसकी मम्मी ठीक ठाक करके उसको पहनाती। तो मैडी भी गरीब थी, किसी के पहने कपड़े जब उसको मिलते तो पहनती। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव इन दैट रीजन जहाँ पे गरीबों की बस्ती थी। She didn't live up on Boggin's height or have a funny name like Venda. Now, sometime when Peggy was asking Venda those questions in that mocking polite voice polite था. So Venda, you have 100 dresses and what did you tell me? How many shoes you have? आवाज polite, लेकिन taunting, mocking, मजाक उड़ाना, टोन थोड़ा वैसा भी था पैगी का। Maddie felt very bad, awkward, weird, that is embarrassed, and studied the marbles in the palms of her hand, rolling them around and saying nothing herself. और तब वो इतनी परेशान हो जाती जब पैगी मजाक उड़ाती वेंडा का और वो अपने हाथ में जो मार्बल्स से उसके साथ खेलती। Not that. And have you ever noticed when we are not confident, तो या तो वो लोग बड़े हो या छोटे, उनके हाथ में जो भी अगर कोई चीज़ है जैसे पेंसिल तो चबाना शुरू कर दिया, शोज लो कॉन्फिडेंस। या नाखून से ऐसे ना लाइक दांत से नाखून काटना, या कई बच्चों की आदत है, दैट शोज लो कॉन्फिडेंस। देन हाथ को ऐसे ना पकड़ के ऐसे करना, दिस इज यू आर गिविंग सपोर्ट टू योर ओन सेल्फ बाय होल्डिंग वन हैंड विद द अदर। या फिर कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे करते रहते हैं, या यू नो समथिंग और द अदर यू वांट टू टच। रीजन इज लो कॉन्फिडेंस, इट शोज दैट वे। तो मैडी भी थोड़ा ऐसी फीलिंग आ रही थी उसमें, तो वो उसके हाथ में मार्बल से वो उसको ऐसे टच करके खेल रही थी। नाउ दैट शी फेल सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली। अब पता चला मैडी को, उसे दुख हो रहा था। सॉरी, शी फेल सॉरी मतलब दुखी फीलिंग आ रही थी वेंडा के लिए कि गलत हो रहा है उसके साथ। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। कभी मैडी की नज़र वेंडा की तरफ नहीं जाती, मजाक चलती रहती उसकी, हंसी मजाक लोग करते रहते, कभी मैडी को बुरा लगता नहीं वेंडा के लिए।
लेकिन क्यों उसका ध्यान वेंडा की तरफ गया? क्योंकि पैगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड जो पैसे वाली थी, उसने ड्रेस वाला गेम लेके आई थी मजाक उड़ाने के लिए कि भाई वेंडा कितने ड्रेसेस है तेरे पास, डेली वही मजाक. बट सपोज पैगी एंड ऑल दी अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन पैगी और बाकी के पैसे वाले बच्चे नेक्स्ट उसकी मेडी की मजाक उड़ाना शुरू कर दे, तो हाउ वुड शी फील? She wasn't as poor as Venda perhaps, but she was poor. She was not like Peggy and her group. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. लेकिन मैडी कहती है खुद को कि लेकिन मैं सेंसिबल हूँ वेंडा से कि मैं कभी किसी को ये तो नहीं कहूँगी मेरे पास 100 ड्रेस है, इतना तो मैं सेंस है मेरे पास. Still she would not like for them to begin on her. फिर भी अगर इन्होंने मुझ पे मजाक किया तो कभी. She wished Peggy would stop teasing Venda. तो अब वो हमेशा ये विश करती मैडी कि पैगी और उसका बाकी के बच्चे जो ग्रुप में थे, दे वुड स्टॉप टीजिंग. टीजिंग मतलब मजाक बंद करना. तो अब ये सोच रही थी कि पैगी और वो लोग वेंडा की मजाक ना करें. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Venda. आज मैडी बहुत खुश थी. क्यों? क्योंकि आज वो पैगी के साथ हिस्सा नहीं बनेगी वेंडा की मजाक उड़ाने में. दो वो कुछ नहीं बोलती थी मजाक उड़ाते हुए, वो सिर्फ खड़ी रहती थी, लेकिन बन गई ना पैगी की सपोर्टर. खड़ी तो रहती थी, कभी उसने रिवोल्ट तो नहीं किया, कभी उसने पैगी को ये नहीं कहा कि पैगी चलो बंद करो ये सब, इट्स नॉट गुड, कभी नहीं कहा. इट मीन शी वॉज अ पार्ट ऑफ द रॉन्ग एक्ट. आज मैडी खुश थी क्योंकि आज मजाक करना ही नहीं था, क्योंकि वेंडा एब्सेंट थी. शी वर्कड अरिथमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली. एब्सेंट माइंडेडली मतलब बिना ध्यान के उसने अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए. 8 times 8, लेट्स सी. शी विश्ड शी हैड द नर्व. नर्व मतलब ताकत. टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट टू पैगी टू से हे पैगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. कई बार ऐसे होता है, हमें कई बार किसी को कुछ कहना है, हम नहीं बोल पाते, तो ताकत नहीं होती हम में. तो वैसे ही मैडी के साथ हुआ. उसे कहना था अपनी बेस्ट फ्रेंड पैगी को कि मत करो ये मजाक वेंडा के साथ, लेकिन उसमें वो ताकत ही नहीं थी. तो उसने कहा चलो भाई नोट लिख लूँ, राइट. लेकिन नोट लिखने की ताकत भी नहीं आ रही थी उसमें. एंड व्हेन शी फिनिश्ड अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. चलो हिम्मत कर ली पैगी को एक नोट लिखनी कि मत मजाक करो उसका. सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड. शडर्ड मतलब शिवर्ड. शी शेक्ड. अचानक नोट लिखते हुए वो स्टॉप हो गई. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड गर्ल्स. उसने कहा अगर मैं उसको कुछ कहूँगी तो शायद वेंडा को छोड़ के मेरा टर्न आ जाएगा, मेरी मजाक उड़ाएंगे ये लोग, क्योंकि किसी को तो करनी थी. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन एंड मैडी वुड हैव टू से it was one of Peggy's old one that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. अब अगर वेंडा की मजाक उड़ाने के लिए वो उसको एक नोट लिखे और पैगी मान भी जाए, लेकिन पैगी ऐसी लड़की थी जिसको अपने फ्रेंड्स के साथ किसी की तो मजाक उड़ानी थी रोज. तो अब टर्न आ गया मैडी का. शायद ऐसा भी होता, राइट. तो मैडी डर गई कि मेरा टर्न आ गया तो, और शायद उसके टर्न आने पे पैगी क्या पूछती कि भाई ये ड्रेस जो तूने पहना है वो किसका है, और मैडी को बोलना पड़ता कि ये तुम्ही का दिया हुआ है. जो हर बार पैगी अपने पुराने कपड़े मैडी को देती और मैडी की मम्मी उसको डिस्गाइज करती, मतलब एक उसको काट कूट के कहीं से एक नया अपीयरेंस दे देती, ट्रिमिंग करके, फिर थोड़ा डेकोरेट करती. और दैट इज़ व्हाट वी कॉल एक्चुअली ट्रिमिंग, मतलब जैसे हम बाल ट्रिम करवाते हैं, किसी चीज़ को कट करना, यहाँ पे डेकोरेट करना ड्रेस को. एंड सो दैट नो वन इन अ क्लासरूम 13 वुड नो कि वो किसी और का ड्रेस पहन के आई है. एंड इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वेंडा. फिर पैगी ने सोचा कि मेरी मजाक उड़ाई जाएगी तो बेटर ये काम नोट लिखने वाला ना करूं. ओ वेल, मैडी रैन अ हैंड थ्रू अ शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर. ऐसे बालों में हाथ घुमाया, छोटे से ब्लॉन्ड हेयर
that is E, we don't say blonde, it is blonde, right? And it is like yellowish colored hair. हमारे यहाँ काले बाल होते हैं तो वो कलर करवाते हैं बच्चे, आधा वाला कहीं पे एक थोड़े से बाल या एंड ऑफ द हेयर येलो ऑरेंज जैसे ब्रॉन्ज कलर वैसे करवाते हैं. तो ये लड़की के बाल येलोइश कलर के थे थोड़े बहुत, तो उसने अपने छोटे से ब्लॉन्ड हेयर में हाथ घुमाया, अपनी उंगलियां ऐसे घुमाई, एंड एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, जैसे अपनी सोच को भगा देना. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? ठीक है, अगर वो मजाक उड़ाए तो उड़ाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ. Slowly Mary tore that note into bits that she had just started to write to Peggy. She was Peggy's best friend. Peggy was the best liked girl in the whole room. और वैसे Peggy बहुत ही लाइकेबल गर्ल थी पूरे 13 नंबर रूम में. सारे स्टूडेंट्स उसको पसंद करते थे और वापस मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड. तो शी सेड ठीक है, it doesn't bring much difference in my life. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और उसको पता था कि पैगी कुछ ज़्यादा बुरा तो करेगी नहीं, क्योंकि वैसे तो वो गुड हार्टेड गर्ल है. एज फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट स्मॉल गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिंस हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. और फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट अ स्मॉल गर्ल हु वॉज स्टेइंग एट द बॉगिंस हाइट. तो अब मेडिकली इंपॉर्टेंट कौन था? नॉट वेंडा, जो अकेली एक लड़की स्कूल ग्राउंड में अकेली खड़ी रहती, बच्चों को खेलते हुए देखती, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट था लाइफ में पैगी. शी हार्डली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी द ओनली टाइम. और वेंडा तो कभी किसी के साथ कुछ बोलती ही नहीं थी, कभी मजाक नहीं उड़ाती थी किसी का, बात ही नहीं करती. शी वॉज जस्ट द गर्ल हु यूज्ड टू टॉक समटाइम्स इन द स्कूल यार्ड अबाउट 100 ड्रेसेस. हाँ, वो सिर्फ तब बोलती जब बच्चे, ये लड़कियां पैगी एंड ऑल उसको क्वेश्चनिंग करते उसके 100 ड्रेसेस के बारे में, तब वो कुछ बोलती. मेडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड सैश. मतलब कि अलग अलग कलर के ड्रेस, कोई पेल ब्लू कलर का था, तो कोई जंगल ग्रीन मतलब डार्क ग्रीन कलर का ड्रेस, और कोई रेड सैश. सैश एक्चुअली इज एक रेड कलर की या कलरफुल रिबन जो ऐसे डाली जाती है फ्रॉम शोल्डर, ऐसे ऊपर पहन लेते हैं और शोल्डर से नीचे की ओर जाता है, जैसे कभी मिस यूनिवर्स का एक यहाँ पे शैश डालते हैं लिखा हुआ मिस यूनिवर्स, वैसे. तो रेड कलर का ड्रेस उसने बनाया था. शी वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन. अब बच्चियाँ उसकी मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि हाँ, you would look like a Christmas tree in that. और फिर मजाक उड़ाना शुरू वापस. Thinking about Vanda and 100 dresses, all lined up in the closet, Mary began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन थी, कलरिंग कंपटीशन. तो मैडी सोच रही थी कि कौन बनेगा विनर. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट. अब लड़कियों को बोला गया था कि तुम्हें बनाना है, ड्रेसेस डिज़ाइन करने हैं, बॉयज़ को डिज़ाइन करना था मोटरबोट. पॉसिबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, ऐसे सबको लग रहा था कि पैगी को ही मेडल मिलेगा, वो जीतेगी कंपटीशन. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, और सबसे अच्छा ड्राइंग पैगी का था क्लास में. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. ये तो सबकी सोच थी कि पैगी जीतेगी. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हेड मतलब फेस, so that you could almost tell who it was. अब इतना अच्छा ड्राइंग था कि खाली कोई हीरो हीरोइन का पोर्ट्रेट देख के हम बता सकते थे कि वो कौन थे. और मैगजीन से डायरेक्टली कोई पिक्चर का कॉपी करना, बहुत अच्छी ड्राइंग. ओह, मेडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो अबाउट इट, राइट. एंड द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. थोड़ी हल्की बारिश हो रही थी. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Vanda on the corner of Oliver Street, the street that far, far away, under the railroad tracks and up the hill led to Bogginside. अब उस दिन हल्की सी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी, बारिश स्टार्ट हो गई थी. तो ये लोग दोनों फ्रेंड्स अम्ब्रेला के नीचे फटाफट स्कूल आ गए. और उस दिन उन्होंने वेट नहीं किया वेंडा के लिए एट द कॉर्नर ऑफ दिस ऑलिवर स्ट्रीट, जो कहीं दूर दूर कहाँ तक जाती थी,
अंडर द रेल रोड ट्रैक्स और डायरेक्टली टू द बॉगिंग साइड जहाँ पे वेंडा का घर था. एनीवे, they were not going to take chance to be late that day because that day was very important for them. Do you think Miss Mason will announce the winners today? क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला था. Asked Peggy. Oh, I hope so. The minute we get in, Miss Mason will come and tell us the name of the winner. Of course, Maddie said, I know Peggy, you will win. Hope so, said Peggy eagerly. And the minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. Gasp matlab shocked. There were drawings all over the room on every ledge and window sill. अब तुम नहीं देख पाओगे शायद, but let me turn the screen of this laptop. शायद तुम्हें मैं बता पाऊँ, शायद, right? शायद यू कैन सी दिस विंडो, और यहाँ पे ये जहाँ पे हम जैसे अलग अलग चीज़ हम रख सकते हैं, या तुम कुछ भी जैसे तुम ये रख दो या कुछ भी, यू कैन कीप एनीथिंग, राइट? I don't know exactly, I can't see my face over here, so I don't know exactly whether it's properly set or not the screen of this laptop, but hope for the best. ठीक है, तो सील ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है, विंडो की ये चीज़ जहाँ पे कुछ चीज़ हम रख सकते हैं, तो उस रूम के हर एक विंडो सील और लेज पे डैसलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट एंड लैविश, मतलब बहुत ही बेस्ट ऑफ द लग्जरियस डिज़ाइंस, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them all lined up. Minimum 100 designs थे. There must be the drawings for the contest. और लड़कियों ने सोचा रूम में आते ही, इन लोगों ने, पैगी, मेडी एंड अदर्स, कि ये कॉन्टेस्ट के ड्राइंग्स होंगे. Yes, they were. Everybody stopped and whistled or murmured, but this time not joking, this time admiringly. वाह वाह. As soon as the class came together, had assembled, मतलब सब बच्चे आ गए, Miss Mason announced the winner. Jack Beggars had won for the boys, she said, and is designed for an outboard motor was an exhibition in room 12. तो वहाँ जाके आप सब देख सकते हो उसकी डिज़ाइन, along with the sketches by all of the boys. And as for girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl in room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and beautiful, in the opinion of the judges, and one of the drawing is worthy of winning the prize. I am happy to say, Wenda is the winner of the girls' medal. Now do we understand? 100 dresses, वो इतने सारे sketches बनाए थे ड्रेसेस के, अलग अलग अलग, हर एक अलग पहले से और दूसरा तीसरे से, राइट? एंड मिस मेसन ने कहा कि तुम रूम नंबर 13 के बच्चे, यू शुड बी प्राउड ऑफ, स्कूल में तुम्हारे रूम की स्टूडेंट जीती है, और एक दो नहीं, सबने एक दो सबमिट किए, इस लड़की ने 100 ड्रेसेस सबमिट किए, राइट? मतलब ड्राइंग्स. अनफॉर्चुनेटली वेंडा वॉज एब्सेंट दैट डे फ्रॉम स्कूल फॉर लास्ट सम डेज, और आज भी नहीं है टू रिसीव दैट क्लैपिंग, दैट इज प्रेज, अप्लॉज दैट वॉज ड्यू टू हर, दैट विस्लिंग. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, said the teacher. Now class, you may file around the room quietly, that is, you may just roam around the class and look at the best of the drawings of the girl Wenda who is absent. Children burst into applause, filled whistling and clapping in praise, and even the boys were happy to have a chance to stamp on the floor, क्योंकि जब हम किसी को praise करते हैं तब भी ऐसे stamping होती है floor पे with the feet, put their fingers in a mouth and whistle. And though they were not interested in dresses, look Peg, said Maddie, there's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here's that green one, boy, and I thought I could draw this. They were feeling actually now sad about it. मजाक उड़ाई, लड़की तो सच बोल रही थी, that she had actually 100 silken and velvety dresses and 60 pairs of different colored shoes in her wardrobe. She was not a liar, right? So the next we'll see in the next lecture. Till then, thank you so much
Thank you for listening this long lecture today. Thank you very much. Take care. Be safe. Be with your parents and other elders in the house. Take care of them. Play with them. Thank you. Thank you so much. Here is the summary of the story 100 Dresses 1 by Elso Esther. On Monday, Wanda Petronsky was not in her class seat, but nobody noticed her absence. She usually sat in the corner of room 13, which housed the rough boys. These boys did not score high marks, were the loudest, and sat in the dirtiest section of the room. Wanda was a quiet girl without any friends. She came from Boggin Street, which was the poorest neighborhood in the town. She sat in the corner of room 13, overlooked by everyone. The only time anyone noticed Wanda was after school hours, when they made fun of Wanda. On Wednesday, Peggy and Maddie noticed that Wanda was not in class. The reason they noticed Wanda's absence was because she made them late to class. Peggy was the most popular girl in school, and Maddie was her closest friend. Usually, they waited for Wanda so they could make fun of her. No one in room 13 had a name like Wanda. Wanda came to school alone and wore a faded blue dress. Though her dress was clean, it was wrinkled and loose. Peggy, outwardly polite, would ask Wanda how many dresses she had in her closet. Wanda would reply she had 100 dresses, all made up of silk and velvet. They would let her go and then laugh behind her back. They didn't believe that Wanda, who wore a faded blue dress, had 100 dresses. They would also ask her how many shoes she had. Wanda would reply she had 60 pairs of shoes. The girls again did not believe her, so they would ask Wanda if they were all the same color. Wanda would reply that they were all different colors. Peggy was not a cruel girl. She did not believe that Wanda had 100 dresses, and therefore felt justified in making fun of Wanda. Maddie, however, did not feel good about teasing Wanda. Sometimes when Peggy politely mocked Wanda, Maddie would stay quiet. So she was glad when Wanda did not come to school that day. While Maddie worked on an arithmetic problem, she thought about writing a note to Peggy asking her to stop this game. But Maddie was afraid. She imagined how she would feel if Peggy told everyone that she was wearing Peggy's old dress. So she tore the note and hoped Peggy would stop making fun of Wanda. Peggy was the most popular girl in the school, while Wanda was a girl from the poorest part of the town who did not have any friends. Thinking of Wanda's dresses, Maddie thought of the drawing and coloring contest. For girls, the contest was about drawing dresses, and for boys, designing motorboats. She knew Peggy would win the contest since Peggy could draw very well. The next day it was raining, so Peggy and Maddie ran straight to school without waiting for Wanda. Maddie wished Peggy good luck and hoped she would win the contest. When they entered the classroom, they were dazzled by the drawings that had been put up all over the classroom. Miss Mason, their teacher, waited until all the students were gathered in the classroom. Then she announced the winner for the boys' contest. She then informed the class that while most of the girls submitted 1 or 2 drawings, one girl from the class had drawn pictures of 100 dresses. She then happily announced that Wanda Petronsky was the winner of the girls' contest.
Though Wanda was not present that day, Miss Mason hoped she would be in class tomorrow to collect the award. For now, Miss Mason asked her students to take a walk around class and admire Wanda's drawings. Maddie, looking around, recognized some of the drawings and whispered excitedly to Peggy. Maddie realized that all the drawings were made by Wanda.